Guys, welcome back to my YouTube channel Civil Services and Aspiration. So guys, this is the part 2 of class 9th polity chapter 4 working of institutions. And in this video we are going to discuss the remaining topics which are left from the part 1 of the video. And if you want to see part 1, you can click on the I button coming above it. So the topic where we have left in the last video is political executive. So, do you remember the story of office memorandum which we started in this chapter? क्या याद है आप सभी को कि मैंने बताया था आपको कि ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम क्या था? And we find out that the person who signed the document did not take this decision. He was only executing the policy decision taken by someone else. We noted the role of Prime Minister in taking that decision, but we also know that he could not have taken this decision if he had not support from the Lok Sabha. In that sense, he was only executing the wishes of Parliament. Means जिसने साइन किया, जिसने बनाया, वो एक्चुअल में उन्होंने लॉ नहीं बनाया, लेकिन जो एग्जीक्यूट कर रहे थे उनका मेन रोल था. Thus, at different level of any government, we find functionaries who take day-to-day decision but do not exercise supreme power on the behalf of people. Means कुछ ऐसे लोग होते हैं पॉलिटी में हमारे पॉलिटिक्स में हमारे गवर्नमेंट में जिन्हें सुप्रीम पावर नहीं होती ऑन द बेसिस ऑफ पीपल, लेकिन वही सारे डिसीजन लेते हैं. सो ऑल दोज फंक्शनरीज आर कलेक्टिवली नोन एज एग्जीक्यूटिव और उन्हें एग्जीक्यूटिव्स बोला जाता है. दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव. उन्हें एग्जीक्यूटिव इसीलिए बोला जाता है बिकॉज दे आर इन द चार्ज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. क्योंकि जो गवर्नमेंट ने जितनी भी पॉलिसीज बनाई होती हैं उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं, उन्हें लोगों तक पहुंचाते हैं. Thus, when we talk about the government, we usually mean the executive. और जब भी हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, सरकार, तो उसमें हम बात करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव की. So now let's see the political and permanent executive. In a democratic country, two categories make up the executive. दो कैटेगरी एग्जीक्यूटिव बनाती हैं. पहला तो वो which is elected by the people for specific period, कुछ समय के लिए, जिसे political executive बोला जाता है. और दूसरे and political leader who take big decision fall in this category. और जो political leaders हैं वो हमारे political executive कहलाते हैं. और जो हमारी second category है वो है peoples are appointed on a long term basis, जो लंबे समय के लिए appoint किए जाते हैं. And this is called the permanent executive or civil services which we all are preparing for. So जो civil servants होते हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं. Persons working in civil services are called civil servants. They remain in office even when the ruling party changes. अगर ruling party change भी हो जाती है तो ये अपने ऑफिस में तब भी रहते हैं, जबकि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो हट जाते हैं. These officers work under political executive and assist them in carrying out the day-to-day administration. और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं ये उन्हें हेल्प करते हैं डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में. सो कैन यू रिकॉल द रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन द केस ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम? So you might ask, why does the political executive have more power than the non-political executive? Why is the minister more powerful than the civil servant? The civil servant is usually more educated and has more expert knowledge of the subject. जो civil servants होते हैं वो ज़्यादा educated होते हैं और उनके पास एक particular subject की एक expert knowledge होती है. The advisors working in the finance ministry know more about economics than the finance minister. तो होता क्या है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसे फाइनेंस के बारे में ज़्यादा नहीं पता, इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा नहीं पता जितना एक एडवाइज़र को पता होता है, यानी कि सिविल सर्वेंट को पता होता है. Sometimes the ministries may know very little about the technical matter that come under their ministry. कई बार ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हो जाते हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता रहता. And this could
easily happen in मिनिस्ट्री, और ये डिफेंस हो, इंडस्ट्री, हेल्थ, साइंस, टेक्नोलॉजी या माइंस, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी मिनिस्ट्री हो. वाई शुड द मिनिस्टर हैव द फाइनल से ऑन दीज मैटर? लेकिन जब सारा दिमाग सिविल सर्वेंट्स का होता है तो यही क्यों फाइनल डिसीजन लेते हैं? सो द रीजन इज वेरी सिंपल. इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ पीपल इज सुप्रीम. लोगों का विल सुप्रीम है, एंड द मिनिस्टर इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. और जो मिनिस्टर है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है पीपल्स का, and thus empowered to exercise the will of the people on their behalf. She is finally answerable to the people for all the consequences of her decision. तो अगर लोगों ने उन्हें सिलेक्ट करके वहां बिठाया है तो उनका भी फर्ज बनता है कि वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर आंसरेबल हो पीपल के लिए. दैट इज वाई द मिनिस्टर टेक्स ऑल द फाइनल डिसीजंस. The minister decides the overall framework and objectives in which decisions on policy should be made. The minister is not and is not expected to be an expert in the matters of her ministry. और जो मिनिस्टर होता है ना कभी हो सकता है और ना है एक पर्टिकुलर मैटर में जो उसके मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है. The minister takes the advice of experts on all technical matters, but very often experts hold different opinion or place before her more than one option depending on what the overall objective is. The minister decide. जो advisor होता है वो सिर्फ advice करेगा, जो final decision होगा वो minister का ही होगा. So actually this happens in any large organization. Those who understand the overall picture take the most important decision, not the experts. The experts can tell the route. जो expert है वो सिर्फ रूट बता सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, but someone with a larger view decide the destination. लेकिन वही person destination तक पहुंचता है जिसके पास larger view हो. In a democracy elected minister perform this role, और ये role elected ministers, political ministers play करते हैं. Now let's see the prime minister and the council of minister. So prime minister is the most important political institution in the country. जो प्राइम मिनिस्टर वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के लिए, कंट्री के लिए. येट देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता. द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन शी लाइक्स. जो प्रेसिडेंट है वही अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर वो किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकता एज प्राइम मिनिस्टर कि जो वो चाहे. The president appoints the leader of the majority party or the coalition of parties that commands a majority in the Lok Sabha as prime minister. तो जो प्रेसिडेंट होता है वो उसी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है जिसकी लोकसभा में मेजॉरिटी हो, जिस भी पार्टी की. इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस गेट्स अ मेजॉरिटी, अगर बाई चांस किसी भी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले, दस द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर अ मेजॉरिटी सपोर्ट. तो उस पार्टी में से बना दिया जाता है जिसको सबसे ज्यादा मेजॉरिटी मिलने के चांसेस होते हैं. द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव फिक्स्ड टेन्योर, कोई भी फिक्स्ड टेन्योर नहीं है. ही कंटिन्यूज इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी और कोलिशन. मतलब जब तक उसके लीडर, उसकी पार्टी चलेगी मेजॉरिटी में, तब तक वो पावर में रहेगा. आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जब प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो जाता है तो जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं अदर मिनिस्टर जो एडवाइस करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. एंड द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोalition दैट हैज द मेजॉरिटी इन द लोकसभा. The prime minister is free to choose minister as long as they are the member of parliament. जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपने मिनिस्टर्स को खुद चूज कर सकता है जब तक वो मेंबर है पार्लियामेंट के. बट समटाइम अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बिकम अ मिनिस्टर. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का, फिर भी उसे मिनिस्टर बना दिया जाता है. But such a person has to get elected to one of the houses of parliament within 6 months of appointment as minister. किस बेसिस पे बनाया जाता है कि वो अगले आने वाले 6 महीनों में
किसी भी एक हाउस का मेंबर होगा. सो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड ऑल द मिनिस्टर. तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है एक ऑफिशियल नाम दिया गया है जिसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स इंक्लूड होते हैं. इसमें 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स के. सो लेट अस रीड वन बाय वन. सो फर्स्टली इट वाज cabinet ministers and which are usually टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी. ये टॉप लेवल के लीडर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के या फिर पार्टीज जिसकी मेजॉरिटी होती है. यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर मीट टू टेक द डिसीजन इन द नेम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वही ज़्यादातर डिसीजन लेते हैं इन द नेम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. एंड कैबिनेट इज दस इनर रिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. इट कंप्राइज अबाउट 25 मिनिस्टर. और इस कैबिनेट मिनिस्टर्स में 25 मिनिस्टर्स होते हैं. Second is ministers of state with independent charges. So these are usually in smaller ministry. इन्हें छोटी छोटी मिनिस्ट्री दी जाती है and they participate in the cabinet meetings only when specially invited. और ये cabinet meeting में तभी participation ले सकते हैं जब इन्हें specially invite किया गया हो. और जो थर्ड मिनिस्टर्स होते हैं वो है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड विच आर अटैच्ड टू एंड आर रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर. इन्हें अटैच किया जाता है, ये हमेशा उनके साथ रहते हैं और कैबिनेट को असिस्ट करते हैं. सिंस इट इज नॉट practical for all ministers to regularly and discuss everything. ये possible ही नहीं है, practical हो ही नहीं सकता. The decision are taken in cabinet meeting. तो जो decision है वो cabinet meeting में लिया जाता है. That is why parliamentary democracy is most countries in that is why parliamentary democracy in most countries is often known as कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है वो अलग अलग कंट्री में कई बार कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी जानी जाती है. द कैबिनेट वर्क एज अ टीम. जो कैबिनेट है वो एक टीम की तरह काम करती है एंड द मिनिस्टर में हैव डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियन. जो मिनिस्टर्स हैं उनके डिफरेंट व्यूज होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, बट एवरीवन हैज टू ओन टू अप टू द एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट. लेकिन हर किसी को एक दूसरे के साथ मिलकर चलना पड़ेगा. नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट. तो वो सरकार के किसी भी डिसीजन को अपोज नहीं करेगा, ना क्रिटिसाइज करेगा. इवन इफ इट इज अबाउट अनदर मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, चाहे वो अलग मिनिस्ट्री का ही क्यों ना हो. मिनिस्टर हैज सेक्रेटरीज. हर मिनिस्ट्री के अपने अलग अलग सेक्रेटरीज होते हैं जिन्हें सिविल सर्वेंट्स कहा जाता है. एंड द सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू द मिनिस्टर्स टू टेक डिसीजन. जो मेन दिमाग चलता है वो सिर्फ सिविल सर्वेंट्स का चलता है और वही अपने आइडियाज़ को, ओपिनियंस को मिनिस्टर्स तक पहुंचाते हैं जो जनता के सामने रखे जाते हैं. द कैबिनेट एज अ टीम इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरीट. जो कैबिनेट पूरी टीम है उसे जो असिस्ट करता है वो है कैबिनेट सेक्रेटरीट. इट इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट पोस्ट एंड दिस इंक्लूड मेनी सीनियर सिविल सर्वेंट्स हु ट्राई टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज. Now moving toward another topic which is power of the Prime Minister. So the Constitution does not say very much about the powers of Prime Minister or the Minister on their relationship with each other. मतलब जो हमारा Constitution है, हमारा संविधान है, उसमें ज़्यादा Prime Minister की powers नहीं दी हुई और ना ही किसी और Prime Minister से उसके relation के बारे में बताया गया. But as the head of the government, the Prime Minister had wide-ranging power. लेकिन वो Prime Minister है यानी कि head of the government है, इसलिए उनके पास बहुत सारी powers होती हैं, which are he chairs cabinet meeting, he coordinates the work of different departments, his decisions are final in case disagreement arise between the department. मतलब वो कैबिनेट मीटिंग हेल्ड करते हैं, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट है उन्हें कोऑर्डिनेटली वर्क कराते हैं और उनका डिसीजन फाइनल होता है अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट अराइज होता है तो. He exercises general supervisions of different ministries. All minister work under his leadership. सारे ministers prime minister के under work करते हैं and the prime minister distributes and redistributes work to the minister. और prime minister ही decide करते हैं कि किस minister को कौन सा department दिया जाना चाहिए. He also has the power to dismiss the minister. वो किसी भी minister को dismiss भी कर सकते हैं. When the prime minister quits, the entire
मिनिस्ट्री क्विट्स। तो जब प्राइम मिनिस्टर अगर क्विट कर देता है तो सारी मिनिस्ट्री को उसके साथ क्विट करना पड़ता है। Thus, if the cabinet is the most powerful institution in India, within the cabinet it is the prime minister हु इज द मोस्ट पावरफुल। मतलब अगर कैबिनेट सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है पूरी कंट्री की, तो उस कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर सबसे ज्यादा पावरफुल मिनिस्टर है। एंड द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन ऑल parliamentary democracies of the world have increased so much in recent decades that parliamentary democracies are sometimes seen as prime ministerial form of government। तो जो प्राइम मिनिस्टर की पावर है वो इतनी ज़्यादा है कि कई डेमोक्रेसी कंट्रीज में उन्हें प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। एज पॉलिटिकल पार्टीज हैव कम टू प्ले अ मेजर रोल इन पॉलिटिक्स, द प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल्स द कैबिनेट एंड पार्लियामेंट थ्रू द पार्टी। जो प्राइम मिनिस्टर है वो कैबिनेट को साथ ही साथ पार्लियामेंट को भी थ्रू हिज पार्टी कंट्रोल करता है। एंड द मीडिया ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू दिस ट्रेंड बाय मेकिंग पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन एज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन टॉप लीडर्स ऑफ पार्टीज। And in India too, we have seen such a tendency toward the concentration of power in the hands of prime minister। आपने भी देखा होगा कि जो ज्यादा पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के हैंड में दिखती है। Jawaharlal Nehru, the first prime minister of India, exercised enormous authority because he had great influence over the public। उनकी इन्फ्लुएंस ज्यादा थी पब्लिक में, इसीलिए उनके पास ज्यादा अथॉरिटी थी। इंदिरा गांधी वॉज ऑल्सो वेरी पावरफुल लीडर कंपेयर टू हर कलीग्स इन द कैबिनेट, और इसी तरीके से इंदिरा गांधी भी बहुत पावरफुल लीडर थी। Of course, the extent of power wielded by a prime minister also depend on the personality of a person holding that position। तो मतलब जो प्राइम मिनिस्टर की पावर है वो इस पर भी डिपेंड करती है कि कितना इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर है। So, however, in the recent year, the rise of coalition politics has imposed certain constraints on the power of the prime minister। तो जब से जो मतलब अगर कोई भी मेजॉरिटी नहीं मिलती तो कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है, तो उसमें जो प्राइम मिनिस्टर की पावर है वो थोड़ी डिक्रीज हो जाती है। The prime minister of a coalition government cannot take डिसीजंस एज ही लाइक। वो अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, उसे दोनों पार्टीज के साथ डिस्कशन करना पड़ता है, उसके बाद ही कोई डिसीजन हो सकता है। एंड ही हैज टू एकोमोडेट डिफरेंट ग्रुप्स एंड फैक्शंस इन हिज पार्टी एज वेल एज अमंग अलायंस पार्टनर। ही ऑल्सो हैज टू हीड the view and position of coalition partners and other parties on who support the survival of the government depend। तो उसे दोनों तरफ बनानी पड़ती है ताकि उसकी जो गवर्नमेंट है वो फॉल ना हो जाए। Now let's see the president about what is the now let's see about the president। So while the prime minister is the head of the government, the president is हेड ऑफ द स्टेट। तो जैसा कि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, उसी तरीके से जो प्रेसिडेंट वो है हेड ऑफ द स्टेट। एंड इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइजेस ओनली नॉमिनल पावर। और हमारे इंडिया में हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में जो हेड ऑफ द स्टेट है यानी कि प्रेसिडेंट है, उनके पास इतनी ज्यादा पावर नहीं होती। द प्रेसिडेंट of India is like the Queen of Britain whose function are to a large extent ceremonial। तो मतलब प्रेसिडेंट इंडिया का उसी तरीके से है जैसे इंग्लैंड में यानी कि ब्रिटेन में क्वीन है, उसी टाइप के फंक्शंस प्रेसिडेंट परफॉर्म करते हैं। द प्रेसिडेंट सुपरवाइजेस द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ all the political institutions in the country so that they operate in harmony to achieve the objective of the state। मतलब जो प्रेसिडेंट है वो सारे इंस्टीट्यूशन को सुपरवाइज करते हैं और ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट है जो उन्हें अचीव करने में हेल्प करते हैं। The president is not elected directly by the people। जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली पीपल इलेक्ट नहीं करती उन्हें। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपीज एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए इलेक्ट्स हर। A candidate standing for president post has to get a majority of votes to win the election। यानी कि एमपी और एमएलएज प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं और जिस भी मेंबर को ज्यादा वोट मिलती हैं वही प्रेसिडेंट बनाया जाता है।
This ensured that president can be seen to represent the entire nation. At the same time, the president can never claim the kind of direct popular mandate that the prime minister can. और उसी तरीके से जो president है वो भी direct popular अपना claim नहीं कर सकता as prime minister can do. This ensures that she remain only a nominal executive. इसीलिए उन्हें nominal executive भी कहा जाता है. The same is true of the power of the president. इसी तरीके से उनकी powers भी हैं. If you casually read the constitution, you would think that there is nothing that she cannot do. अगर आप constitution पढ़ेंगे, हमारे संविधान को उठा के पढ़ेंगे, तो उसमें आप पाएंगे कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो president नहीं कर सकता. All the governmental activities take place in the name of president. President के नाम से ही सारी activities perform होती हैं. All the laws, major policy decision of the government are issued in her name. उन्हीं के नाम से issue किए जाते हैं. All major appointments are made in the name of president. और जितने भी appointment होते हैं बड़े बड़े उन्हें भी president ही करते हैं, such as appointment of the chief minister of India, the Chief Justice of India, the Judges of Supreme Court and High Court of the state, the Governor of State, Election Commissioner, ambassadors to other countries, means all international treaties and agreement are made in the name of the President. President ही ये सारे काम करते हैं. The President is the Supreme Commander of Defense Forces of India. और ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि हमारे इंडिया में, कंट्री में जो भी डिफेंस फोर्सेस हैं उनके चीफ होंगे president. And but we should remember that the president exercise all these power only on the advice of council of minister. वो सारे काम तो करते हैं लेकिन सिर्फ advice किसकी होती है? council of ministers की. The president can ask the council of minister to reconsider its advice, but if the same advice is given again, she is bound to act according to it. मतलब अगर कोई भी decision council of ministers advice अगर कोई भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देते हैं तो प्रेसिडेंट सिर्फ उनसे दोबारा एक बार सोचने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर दोबारा भी वही चीज सामने आते तो उन्हें वो एक्सेप्ट करना पड़ता है प्रेसिडेंट को. सिमिलरली अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट बिकम अ लॉ ओनली आफ्टर प्रेसिडेंट गिव असेंट टू इट. और कोई भी जो बिल पार्लियामेंट से पास होकर आता है वो सिर्फ प्रेसिडेंट ही उसे लॉ बना सकता है. एंड इफ द प्रेसिडेंट वांट, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो डिले कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए और या फिर वापस पार्लियामेंट में भेज सकते हैं. लेकिन अगर पार्लियामेंट से फिर से पास होकर बिल आ जाता है तो उन्हें साइन करना ही पड़ेगा. ही इज बाउंड टू साइन दैट बिल टू बी एन लॉ. So you may wonder what does the president really do? तो अब आपको लग रहा होगा कि president actually में करते क्या है. Can she do anything on her own at all? There is one important thing she should do on her own. सबसे बड़ी चीज जो वो अपने आप करते हैं without any advice, which is the appointment of the prime minister. When a party or a coalition of parties secure a clear majority in the election, the president has to appoint the leaders of majority party or the coalition that enjoy majority support in the Lok Sabha. तो जब भी इलेक्शन के बाद कोई भी पार्टी मेजोरिटी में आती है तो उसमें से मेंबर अपॉइंट करते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, और अगर कोalition गवर्नमेंट होती है तो उनकी सलाह से कोई भी नाम दिया जाता है उसे अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट एज अ प्राइम मिनिस्टर. So when no party or coalition get a majority, और जब कोई भी पार्टी या कोalition मेजोरिटी में नहीं आती लोकसभा में तो प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन की पावर को एक्सरसाइज करते हैं एंड द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर हु इन हर ओपिनियन कैन मस्टर मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा. तो वो प्रेसिडेंट उस पर्सन को अपॉइंट करते हैं एज अ लीडर मेजोरिटी गेन कर सकता है लोकसभा में. In such a case, the president can ask the newly appointed prime minister to prove majority support in the Lok Sabha within specific time. एक टाइम दिया होता है, टाइम लिमिट होती है, उसके अंदर अंदर उस लीडर को अपनी मेजोरिटी शो करनी पड़ती है, प्रूव करनी पड़ती है. Move towards the last topic of the chapter, that is the judiciary. So let us return one final time to the story of office memorandum that we started with. मतलब office of memorandum जिसके बारे में हमने इस chapter को start करते time पढ़ा था. And this time let us not recall the story but imagine how different the story could have been. Remember, the story came to a satisfactory end because the Supreme Court gave a verdict that was accepted by everyone.
इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो मतलब जो ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम था उसका जो कंक्लूजन निकला बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री था, बिकॉज क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा वर्डिक्ट दे दिया था जिसे सबने मान लिया था। तो अगर ऐसा नहीं होता और बाई चांस द सिचुएशंस वर इफ देयर वॉज नथिंग लाइक सुप्रीम कोर्ट, अगर बाई चांस सुप्रीम कोर्ट ही नहीं होता कंट्री में, कोई सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को ट्रस्ट कर सके, अगर फेयर जजमेंट दिया भी गया, तो इफ दोज हु अपील अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर डिड नॉट एक्सेप्ट द जजमेंट, और अगर गवर्नमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट रीअपील किया जाता तो हो सकता था नहीं एक्सेप्ट किया जाता। सो दैट इज व्हाई एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी इज कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर द डेमोक्रेसी। इसीलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट और पावरफुल बनाया गया है, जो कि बहुत जरूरी है डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। All the courts at different level in the country put together are called the judiciary। जब हम सारे कोर्ट को, जो डिफरेंट लेवल पे कोर्ट है अलग अलग, उनको जब हम एक साथ रख दे तो उसे जुडिशरी बोला जाता है। एंड द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ द एंटायर नेशन। हमारे कंट्री का एक सुप्रीम कोर्ट है विच हैंडल द एंटायर नेशन। देन इट इज हाई कोर्ट इन द स्टेट्स, district courts and the courts at local level. India has an integrated judiciary. It means that the Supreme Court control the judicial administration in the country। मतलब हमारी कंट्री में, इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, जिसका मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सारे जुडिशियल सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करेगा। एंड इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। और जो ये डिसीजन होंगे उसको सभी कोर्ट को मानना पड़ेगा। इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट, किसी भी तरह के डिस्प्यूट को ले सकता है which is between citizen of the country, between citizen of the government, and between two or more state, and the between government at the union and state level. And it is the highest court of appeal in criminal and civil cases. It can hear appeal from the decisions of the high court। हाई कोर्ट के डिसीजन को भी अपील कर सकते हैं इसमें। Independence of the judiciary means that it is not under the control of legislature or executive। जुडिशरी के इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि वो किसी भी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में नहीं होती। द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट। जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो किसी भी गवर्नमेंट के डायरेक्शंस पर नहीं चलती, or according to the wishes of party in power। That is why all modern democracies have court that are independent of the legislature and the executive। इसी वजह से जो जितनी भी मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उसमें इंडिपेंडेंट कोर्ट्स होते हैं। The judges of the Supreme Court and the High Court are appointed by the President on the advice of Prime Minister and in consultation with the Chief Justice of the Supreme Court। जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और साथ में कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। In practice, it now means that the senior judges of the Supreme Court select the new judges of the Supreme Court and the High Court। लेकिन अब के टाइम में सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वही सिलेक्ट करते हैं नए जजेस सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के भी। This is there is a very little scope for interference by the political executive। और इसमें बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस हो। The senior most judge of the Supreme Court is usually appointed by the चीफ जस्टिस। और जो हमारे सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। Once a person is appointed as a judge of the Supreme Court or the High Court, it is nearly impossible to remove him or her from that position। अगर एक बार कोई भी पर्सन जज बन जाता है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, तो उसे हटाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। It is as difficult as removing the President of India। ये इतना ही मुश्किल काम है जितना एक प्रेसिडेंट को हटाने के लिए होता है। A judge can be removed only by an impeachment motion। जज को सिर्फ impeachment motion से ही हटा सकते हैं, and which was passed by separately by 2/3 member of the two houses of the parliament, and it has never happened in the history of Indian democracy। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है पूरे इंडियन डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में।
द जुडिशरी इन इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड. जो इंडिया की जुडिशरी है वो भी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल है. The Supreme Court and the High Court have the power to interpret the constitution of the country. और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो इंटरप्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान को. They can declare invalid any law of the legislature or the actions of executive, whether at the union level or at the state level. जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, किसी भी डिसीजन को या किसी भी लॉ को जो लेजिस्लेचर ने या एग्जीक्यूटिव ने लिया है उसे इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती हैं, चाहे वो यूनियन लेवल पे हो या फिर स्टेट लेवल पे. इफ दे फाइंड सच अ लॉ और एक्शन इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उन्हें लगता है कि कोई भी डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है तो thus they can determine the constitutional validity of any legislation or action of the executive in the country when it is challenged before them. This is known as the judicial review. जब कोई भी वैलिडेशन लेजिस्लेशन की या फिर एग्जीक्यूटिव की कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाती है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो हैज रूल्ड दैट द कोर और द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द पार्लियामेंट. और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये भी करता है, कहता है कि जो बेसिक प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसे पार्लियामेंट में चेंज नहीं किया जा सकता. द पावर एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशरी अलाउ इट टू एक्ट एज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. जो पावर है और इंडिपेंडेंस है इंडियन जुडिशरी की वो अलाउ करता है कि वो रक्षक बने हमारे फंडामेंटल राइट्स का. We shall see in the next chapter that the citizen have a right to approach the courts. We shall see in the next chapter that the citizens have a right to approach the court to seek remedy in case of any violation of their rights. In recent years, the court have given several judgments and directives to protect public interest and human rights. Anyone can approach the court if public interest is hurt by the actions of the government. और अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट के अगर कोई भी गवर्नमेंट के एक्शन से हर्ट है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकता है कोर्ट में जाके. एंड द कोर्ट्स कैन इंटरवीन टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन. They can check malpractices on the part of public officials. That is why judiciary enjoys a high level of confidence among the people. और हम judiciary के बारे में अगले chapters में discuss करेंगे. So here the chapter ends and thank you guys for watching this video, and if you like it please do like, share and subscribe to our channel, and you can also give more suggestions for upcoming videos in the comment section below. Thank you.